You are I asking am. a question at the end of the session, and very particular questions you have asked. Thank you. I'm here to No, share my experience. तो So मैं I would एक काम like to करता हूँ add सर. that today is the day of ragging for me. No, तो सर एक काम करता हूँ सर. लेट मी स्टार्ट. वरप्रसाद प्रसाद सर, मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक्स से, एंड आफ्टर दैट यू गो टू द टेक्निकल पार्ट, बिकॉज इनिशियल पार्ट डेफिनेटली आई कैन टेक केयर ऑफ. इतना तो आराम से कर सकते हैं. तो डॉक्टर दिनेश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड योर परमिशन टू. आई नो यू आर अ स्कॉलर, बट स्कॉलर का एक डमी के लिए भी एक होता है ना, कि भगवान राम ने Please. बताया था कि किसी का भी बी हम्बल एंड गिव मी द परमिशन टू take a mock interview of yourself. I know means I don't know whether I can. I don't have authority, but definitely I can request you to give me the opportunity to take your formal interview. Definitely, sir. So You can okay, start. Doctor. Of course. So Doctor Dinesh, tell me why you want to be a patent agent. Sir, I'm Professor Dr. Dinesh Arora, and let me introduce myself first to you. That I'm doctorate in electronics and communication, and I'm into teaching profession from the last 24 years. And presently, I'm working with CGC Group, which is in Mohali, Punjab, and I was there working as a professor in electronics department from the last 10 years. And recently, in 2024, they have given me the charge to handle the IPR facilities in our campus. So I'm looking after the IPR cell as an IPR head over there, and I am administrating the IP management. Plus, I am conducting the awareness sessions. I am applying for the grants to the various agencies. Plus, I am in contact with the Test Center of the Punjab and the various other agencies for getting our inventions commercialized. And we are also getting the Idea Lab from the AICT, in which we are helping the student innovators and startups to create their prototypes so that we can pitch them into the industry and get them commercialized. So when I will be becoming a patent agent, I will be more emphasizing on creating the awareness sessions that with the confidence, and plus I will be presenting my college to the IP India. And I will be helping the my entire team in patent drafting, searching, and filing. Mhm. Right. Dr. Dinesh, after seeing your profile and listening to your answer, I can understand you have got a very good understanding, knowledge about all this IP rights, and you are taking care. So why? I mean, I don't think so. You can do it without being patent agent also, the way you are managing. So even you can help in drafting everything, but still, why that patent agent? After What you are studying, different you are going to do, what you are not doing? yes. So I'm going to answer. After studying the Patent Act and the patent rules, I have come to know the many things which I need to elaborate it to my faculty members, but not only to faculty Mm, members, but also to the budding mm, students who are aspirants in making their career in the field of IP. So we are going to mm, introduce a value-added course for them. Yes, I can mm, do it without clearing the patent examination as well. But if in case I will be professionally qualified, my students will be impressed from me that we are listening to the one who is already who also have got a certificate for the same. And not only this, but also I will be able to cover so many things for my faculty members as well. Since हमने section 29 mm, पढ़ा, 30 पढ़ा, 31 पढ़ा, when to particularly file the invention. So most of the faculty members are not mm, aware that whether to publish the research paper first or to go for the patent filing. So mm, so we are clearing them also. We are giving them the importance of section 47 also, that the experimentation purpose mm, के लिए अगर आप कोई invention को utilize कर रहे हैं तो there will not be any kind of mm, anticipation. So based right. upon these theory, law, acts, I will be able to clear more concepts of my students or the stakeholders, whosoever will be listening to me. So Right. very soon we are going to start the certification courses for our students. Since Great. this is the Which last, section defines about the qualification of a patent agent? so qualification of patent agent, he should be a science graduate, having 21 years of age, and should be a citizen of India.
Plus, he In should which clear. section it is defined? Oh, yes. Qualification of patent agent is 126. Okay. And then if the educational qualification is basically, science graduate, you are already postgraduate. Don't you think you are overqualified and just going to get a patent agent is a small passion for you? Or how again, I am not convinced why you want to be the patent agent. See, sir, in 2023 November, they had given me an additional charge to handle all the IP-related activities, apart from the Mm-hmm. working as a professor in electronics and communication. Prior to Mm-hmm. this, we were getting it filed through the third party. Uh, since CGC is having a huge database of patent filings, around 3,000 patents have been filed till date. The prime concern of the management was that patents are filing day by day, but unfortunately, we have seen that we are not able to manage the entire database. So they had given this opportunity to my director research, who simply contacted me that whether if you are interested, since I was filing patents at that time also, and she approached me that if you can do such thing apart from this your academic load, so that would be wonderful. Then in June 2024, I approached my director that we should start our in-house IPR cell. See, each and every universities these days are filing innovations by their own. So we started in July on, and we recruited patent agent as well as the patent associates. And after looking at my enthusiasm in working in this field, because the interest created for the students, for the startups, we have an incubation cell as well. So we are supporting the region-specific startups and the budding innovators, the early-stage startups also. They are getting the innovations filed from us. So for that, I particularly felt that I should be professionally qualified so that I can deliver more specifically, and further I can represent my college to the IP India. And I can help Good. my my fellow colleagues in patent drafting and prosecution and FER reply. Good, very good. Actually, next question to you is what is your opinion and idea about patenting of microorganism where country specific origin of country need to be mentioned? Caesar, if we talk about section 3J, the plant and animal as a whole, except microorganism, they are not patentable. Although the microorganisms, if we are utilizing, we have to take the permission from the National Biodiversity Authority before the grant of the patent. So yes, yes. So under section 3J, yes, we cannot file the patents related to the plant and animals. But microorganisms, the lab-grown microorganisms can be patentable. Actually, I wanted to understand about genetically modified organism where we are just, in deep sea biology where new organisms are coming, they're used for commercial things. Now there are people who are like landlocked countries, there are countries who don't have a sea also. So they have some rights. So, like who should get benefited? What is then there is something called origin or country, origin of means country origin, so that gene sequencing cannot be, copied and try to make the drugs, everything. So who will get benefited? They said कि microorganism तो है नहीं, मैंने genetic को sequence कर लिया and after this sequencing I am producing the result. So the real person who has done the research or they will not get benefit from this. Any idea about this? Have you heard about it or it's a new Sir, thing I to have you? heard about it. Actually, I have read about it, although this is not my field, but still I have an idea that इसमें केस स्टडी भी है जिसमें कि डीएनए सीक्वेंस में अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो हमारी पेटेंटेबल नहीं होती है एंड सॉरी सर इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता No, जी hearing back like सर योर smart वॉइस chips इज and all. ब्रेकिंग हेलो Am I audible to you? Yes, यस sir. Now you are audible. Yes. So I think what is your idea about like smart chips? यस सर
G. Yes, smart chips can be patentable if they are producing a technical efficiency. They can be patentable, but Okay. Okay. uh, they come under special intellectual property rights, IC integrated law. There is a separate law. There is a separate intellectual property for the same. Yeah. Mm-hmm. Very. And as a suppose you are a patent agent, you are selected now, you are registered yourself, you got your number. After that, what are the 2 or 3 things you will do? So what I have think about this is that I will be creating a certification courses for my students, those who are the BSc or the MSc graduates. And these certificate courses will be involving these not only the innovation plus the entrepreneurship. And yes, we will be getting them prepared for the IP patent agent examination as well. And we'll be giving the thorough knowledge about the patent law. The very first Okay. thing is this. And Yes. Yes, sir, please. okay, then shall I come to my next question? Yes, sir. Okay, my next Sorry. question to you is suppose one person is in a business of jewelry, gems and jewelry. Okay, Ji. and he is right now doing some outsourcing, getting the things done, and he wants to open his own manufacturing unit, right? He Manufacturing wants to unit. take the advantage he wants to take the advantage of Startup India, and he has been registered as a MSME. And he like now, what is your suggestion for him as a patent agent? Can you suggest something to him, or what are your limitations and what are your strength? How can you guide him? Sir, I can guide him that under Startup India Intellectual Property Scheme, SIPP scheme, he can file the innovation. There is one thing. Second thing is this: in case he is filing, he will be getting the 80% reduction in the fee. That too will be by filing Form 28 as a small entity, startup and education institute. And further, the government has reduced the fees to 20% only for all kind of activities, whether it is the early publication. Uh, and since he is a startup, he is eligible to go for the expedited examination as well. And then in each and every case, we can say that there is a reduction in the 80% fees. And further, SIPP scheme, under SIPP scheme, he can avail the benefit of getting it filed through the patent facilitators. They are the registered patent facilitators, which their number can be downloaded from the IP India website. And yes, even if I will be registered at that time as a patent facilitator, I myself will help them out. Right. And what your in Patent Act, where are what is the right of a women? What are the special right of a women as per Patent Act or वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट ने so many schemes have been opened. सबसे पहले तो हम बात करें कि वुमन IPR scheme चल रही है, like woman wise Kiran scheme is there, and under this wise Kiran scheme there is a wise IPR, women in science, engineering, and knowledge inculcation and research and sorry, I'm forgetting the entire full form. Under this scheme, they can go for learning the IP Act. They can just learn the course of this patent. And second thing is this: being a woman innovator, they also have the facility to go for the expedited examination of their patents. Right? And third, हमारा Right. yes sir. थर्ड हमारा सर ये है कि टिफैक्ट सेंटर है हमारे टिफैक्ट सेंटर्स न्यू दिल्ली में है, जो कि वुमेन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आईपी सिखा रहे हैं और उनको ट्रेन कर रहे हैं वहां पे, उनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड। तो ऐसी Right. और भी स्कीम्स हैं जो हमारे इफ आई टॉक अबाउट द टिस्क सेंटर ऑफ पंजाब, which is Punjab State Council for Science and Technology. So under SHE program, they are also giving the grants to women entrepreneurs. So women entrepreneurs can certainly go for filing the patents as well, which is a part of it.
Right. Three person who has influenced you in your professional life. Name three Uh, person who has influenced you in your professional life. any person, is it us? Any person who has influenced you in your professional life. So my father has influenced me very much. The Okay. very first person. And the second person, if I talk about, is my mother herself, because I've seen, and the third person is my wife. All are hard workers. Great, great. Yes. Means, anyway, I think 15 minutes is over, Jabi sir. Am I right? Yes, yes, sir. I must ask Because Varaprasad sir. Sir, would हाँ you like अभी to वेरा ask any प्रसाद सर को question? बहुत सारा क्वेश्चन मिला होगा. Sure, sure. So much, sir. No questions from my side, but maybe if you allow, I will give a quick feedback, few Please, lines. please, sir. Sir, thank you so very much. Like KV sir mentioned, your confidence is very, very good confidence you have, good voice you have, good clarity in the thoughts. 2 points. One, in your introduction or anywhere, do not make it lengthy. Do not give any unnecessary details to them. I was worried when sir asked you second question, why you wanted to have a patent agent exam. For a moment, I thought it might clash with your introduction itself, in the sense you are handling a lot of things which are related to patents from your university side, which patent law might prohibit. Who is not a person like a patent agent cannot deal that kind of activity. It might go in the direction where you are doing something which we say, hey, I help my students, I help my university to do related to IP, right? And in that direction, it might fall into the direction where a person who is not a patent agent should not do. Maybe corrected. JV sir can correct me if I'm going overboard, but No, no, that's no, what sir. You are on a right path. But as correctly mentioned by the Dinesh sir, that he is getting work from some firms. He has already mentioned that he's means they have hired one patent agent, those who are doing work for them, and he is handling the IP department. So overall responsibility is given to the head of department for the IP related things to Dinesh sir, and that's I'm why that is the reason wants to pursue patent agent examination, because without being patent agent, if you are doing these things, that is not a good thing. So that is the main, I think, highlight. And if it is not clear, then make sure that Dinesh sir, you will introduce yourself in that manner. That is the ultimate thing keep it that you would short. like to conclude, correct You sir? should not give any hints for the interviewer that slide into the direction. And for the the, second question, that point also you can mention that rule. If we are not a patent agent and do work for university like this, uh, it might fall into the direction, and you want to avoid that conflict. So that's why you are wanted to be a patent agent yourself. thank you Otherwise, so much. otherwise all good. I'm sure they will Thank you. ask something about forms also. I mean, like say, what is Form 10? वो What सर ये अभी This जैसे सर ने छोड़ना नहीं मुझे भी this I मुझसे have not clarify asked, sir. I know they know them very well. yes, yes, yes. So technical question I have literally avoided because of their preparation. I know if I will ask them, it is just a repetition. I wanted to give them a different flavor. That's all. Because section rules means everything they are totally aware of. मैं सुन रहा हूँ उनके डिस्कशन को भी सुनता हूँ. So that is why I have almost avoided section. बाली एक जगह पूछा था मैंने बस. नहीं Yes. सर अब तो भूल चुके हैं वैसे अब दोबारा पढ़ना बाकी है अभी नहीं नहीं तो फिर वो रिवीजन तो फिर संडे संडे को सेशन है, रिवीजन सेशन संडे. संडे जी कंप्लीट रिवीजन सेशन है सर. बहुत बढ़िया सर. पेटेंट, डिजाइन, फॉर्म्स, वो दोनों की. अभी सर आप करेक्ट. क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से जितने पूछ सकते हो, थोड़ा सा मुझे भी पता लग जाएगा मैं कितना को याद रख के बैठा हूँ, खास चलिए करके सर आप सर, पसंद अभी है. जी सर, अभी पूछ लेते हैं. जी सर. सर, जब आप स्टार्टअप की बात कर रहे थे, जी सो सर. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप? ग्रेट सर.
First criteria for startup is इनका जो टर्नओवर है, एक तो वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड कितना दे शुड बी इन्वॉल्व। हाँ जी सर, कितना टर्नओवर होना चाहिए? 10 करोड़, 10 सीआर से लेस। 10 करोड़ 10 कितने मीन्स एक महीने में, एक बरस में? 10 सालों में सर। 10 सालों में 10 करोड़ से कम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक साल में, एक साल में, सॉरी 1 साल में? जी। लेस देन तब 10 भी करोड़, हाँ 10 करोड़ इन इंडिया। देन हाँ जी। जी जी प्लीज और प्लीज गो further अहेड। they should be involved in innovation related activities, and they should be registered with MSME or DPIIT. Okay, and under which rule or under which section the definition of startup is mentioned under patent act or rule? सॉरी सर, ये याद नहीं आ रहा Okay, then second question is, सर। ये इसके आंसर बाद हाँ, में बताऊंगा, ये बताइए दो थोड़ा सा। मैं अभी अभी दूंगा सर, अभी दूंगा। पहले मैं सारे क्वेश्चंस कर लूं आपसे, then I will ओके, correct you in every terms. Okay. So राइट सर। second question from my side is, जी once a student wants to file an application for a patent, जी which forms student might file at that time as being a natural person, considering the fact that the students are natural person? So can student file patent application by their own? Yes or no? Yes, sir, they can file, First of all. but they can file, but they Okay. need to have the person who is skilled in the art. Now as being an literate person of Patent Act you are knowing, you are Yes. knowing, as जी being a literate person, what kind of guidance that you will give to the students so that the student will enable themselves to file patent application? So simple question is, once a student wants to file a patent application, which forms student must file at the time of filing the patent application? So Form 1, Form 2, Form 3, Form 5, and since he is an individual applicant, he need not to file that Form 28, and Form 26 is Okay. not required. Yes, Okay. Suppose I because wants he's to not uh, approaching any suppose patent I agent. want to expedite my publication, then Form 18A, sorry, expedite by public. publication, then Form 9, sorry. Okay. What is the fees of Form 9? So 2,500. Who can file Form 9? Anybody can file Form 9 who has filed the patent application. Anybody? Applicant and other than applicant can also file? Okay. Yes, sir, any person can file. No, sir. Okay. Next question. Form number 18, who can file? Any person Any person or any person interested? interested, sir. What is the difference between any person and any person interested? Any person interested is the person who is engaged in promoting the innovation and is engaged in research. Any person interested means any person which includes the government. Hmm. So what are the main sections in which any person interested comes into picture? So, like Section 18, Section 18(1). For what purpose? for applying the examination. That is Form 18. Okay, Form section, 18, which yes. section deals with Form 18? 11B. 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 That is one section under which any person interested comes into picture. Then what is G. the second section under which person interested came into picture? Section 84, sir. For what purpose? For applying a compulsory license. Okay. Any other section? Just a minute, sir.
Sir, section 25. 25. How person interested involved in it? Sir, opposition to grant of patent. Opposition to grant of a 25 patent. 25 2. 25 2 means post grant opposition. Post Okay. grant of patent. Yes. Any one more section where person interested comes into picture? Just a minute, sir. Section 64, sir. Okay, for what purpose? For revocation of patent, sir. Who can file revocation petition? Person interested or central government. And third category? Third category, yes, है सर third category में बताता हूँ एक मिनट. High Court. High Court? High Court itself can file revocation petition? Revocation. The person who is infringer, the infringement suit is filed on him. Counter claim. In a counter claim of infringement suit. जी. Counter claim. So revocation suit, the litigation process will be in? Yes, sir. Litigation process will be held in patent office or somewhere else? Yes, sir. वो controller may create the hearing and the litigation process will be done in either this, High Court, sir. Counter claim wala. Revocation. In case of counter claim, it will be done in High Court. That's perfect. So you have given many answers, but a person interested के लिए जो आपने बताया उसमें कहीं पर भी आप ले लीजिए कि person interested जब opposition करते हैं, फॉर्म नंबर 14 ले लीजिए जिसमें 57, 61, 87, 88 ये सारी जगह पर पर्सन इंटरेस्टेड है, जहां पर आफ्टर ग्रांट जब भी ओपोजिशन की बात आती है पर्सन इंटरेस्टेड सामने आ जाते हैं. ओके सर. करेक्ट. तो वो सेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं. जब आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो तो पर ईयर एक वर्ष का उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर ईयर. एंड स्टार्टअप की जो अवधि है वो यानी स्टार्टअप जो फाइल कर रहे हैं वो 10 बरस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. विद इन 10 ईयर्स पर ईयर का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं. तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आते हैं. ये मेंशन है रूल नंबर 2F में. रूल 2 सब कैटेगरी F के अंदर ये मेंशन है. और उसमें से ही आप फिर MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी एक बार देख लीजिएगा. रूल नंबर रूल 2. आई गॉट इट सर. मैं सेक्शन से जोड़ रहा था. हाँ दैट्स राइट. तो बस यही पूछेंगे आपने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया मुझे तो ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि आपसे वो मींस DPIIT या वाइस किरण या फिर SSIP वही सारी जगह पर लेके जाएंगे क्योंकि आपने वो चीज फाइल करके रखी है. तो वो उसमें तो आप अच्छी तरीके से आंसर दे ही रहे हैं. टेक्निकलिटीज की बात है तो एक बार आप रिवीजन करेंगे तो शायद और बेटर हो सकती है. टेक्निकलिटीज में हाँ थोड़ा सा है. So that's from my side, sir. Correct. हमारे साथ अनुज रतुरी सर है. अनुज सर के बारे में मैं बता दूं कि मैं देखिए सभी लोग सीखते ही हैं. मैंने भी ये कहा था ना आपसे कि अभी आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो इट डजंट मीन्स कि मैं आपसे कभी नहीं पढ़ूंगा. द बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके सामने. अनुज सर जो पहले मुझसे पढ़े थे पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन शायद मैंने उनको क्लियर करवाया होगा शायद वहां पर. बट जब मुझे पेटेंट फाइल करना नहीं आता था. मैं पढ़ा सकता हूँ आई एम गुड एट टीचिंग बट मुझे एट दैट टाइम पेटेंट फाइल करना कुछ नहीं आता था. ड्राफ्टिंग की कोई सेंस नहीं थी मुझे. लिखना मीन्स ड्राफ्टिंग क्या होती है वो पता है बट जब वो प्रैक्टिकली आप लिखते हो ना उसमें बहुत चीजें डिटेलिंग में आती है. तो ही इज माई टीचर. दिस फेलो इज माय टीचर. वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट मैं कहता हूं कि उन्होंने मुझे बताई वो डिटेलिंग्स बताई कि जयवीर सर आप आइए यहाँ पर. और ना ही सिर्फ बताई उन्होंने मुझसे फाइल भी करवाई पेटेंट्स बहुत सारी. सर आप करिए आपको जरूरी है. यू नीड टू डू दैट. आप और ये जो फिर बूस्टअप होते हैं ना कॉन्फिडेंस. अब तो हम बहुत सारी चीजें फाइल कर जाते हैं बट जो पहला जो मुझे ये पहली बार पता चला था कि
पेटेंट फाइल करना एक पूरा डिफरेंट डोमेन है, और पेटेंट के बारे में जानना एक पूरा डिफरेंट डोमेन है। तो आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली सर, डीपली आई एम थैंकफुल टू यू, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू फाइल मेनी पेटेंट्स नाउ, और मुझे अभी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज ऑफ such kind of personalities I am having in my life. So one of the personalities अनुज रतूरी सर। तो अनुज सर आज है यहाँ पर। सर ने कहा था कि आई विल शेयर माय वाइवा वॉइस एक्सपीरियंस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन। बट उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने दिनेश सर का वाइवा सुना, आप सभी लोग दिनेश सर के लिए क्या प्रोस कॉन्स समझ रहे हैं प्लीज मैसेज में लिखिए, ताकि वो पता चले हमें कि क्या आगे करना चाहिए। एंड दिनेश सर को पता है कि उसमें से क्या अडॉप्ट करना है, क्या उनकी लेकुना है, क्या नहीं है। हम अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज हिचकिचाइएगा मत। एंड हाँ, आउट ऑफ 50 दिनेश सर को रेट भी कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि हमारा जो एवेल्युएशन है और जो एग्जामिनर का एवेल्युएशन है, क्या वो मैच हो पाता है कि नहीं इन फ्यूचर के लिए। करेक्ट सर? तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पहले अनुज सर, देन वरा प्रसाद सर, एंड देन थर्ड विनोद सर टू शेयर देयर जर्नी, कि उनकी एक्सपीरियंस क्या रही वाइवा वॉइस में, उनसे क्या पूछा गया, पेटेंट एजेंट वो कैसे बने, एंड बाकी कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दिनेश सर। हम अनुज सर को अब सुनेंगे। सॉरी जावेद सर, मैं बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। विनोद सर यस से सर। मैं कोई इनपुट कोई देना चाहेंगे विनोद सर? हाँ सर, वो सर अभी यही सेशन में। नहीं, जी सर, लास्ट 15 विनोद सर। मिनट्स में लास्ट 15 मिनट्स में सर हम यही अब कंक्लूड करेंगे सारी चीजें वन बाय वन। whatever I have delivered उसके जैसे वरा सर ओके 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 ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। विनोद सर। सर यस सर आपने। अभी देखिए, मेरे को भी वही जो अभी वीरा प्रसाद सर ने बोला, हमारा प्रसाद सर ने, एक्चुअली सर हिज कॉन्फिडेंस इज गुड। द मोमेंट आई वाज लिसनिंग टू हिज वॉइस इज वेरी नाइस। प्रैक्टिकली ही इज वेरी चार्मिंग। ओनली थिंग इज दैट कि थोड़ा सा स्माइल लेके रखिए, बिकॉज वहां पे आंसर के टाइम पे थोड़ा सीरियस हो जा रहे थे। अदरवाइज एंड बी प्रिसाइज, ज्यादा देर इज नो नीड। द मोर यू स्पीक द मोर यू गिव अपॉर्चुनिटी टू बी ट्रैप्ड। तो जी बी जितना कौन, बिकॉज वो मेरा भी वीकनेस है। अगेन इट्स वेरी इजी टू जज एनीबडी, बट वेरी डिफिकल्ट टू ना ये करना। तो आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इफ ट्राई टू बी कॉन्शियसली प्रिसाइज। वो आदमी का जी हैबिट तो चेंज होता नहीं है, तो नेचर एंड सिग्नेचर डजंट चेंजेस क्विकली। टीचर वाली सब स्ट्रिक्ट आ जाती है ना कि समझाने लग जाते हैं हाँ कि मैं हाँ ये किया कि नहीं किया आपने। जी हाँ। सर। तो वहां पे बस वही खाली कॉन्शियसली थोड़ा सा रखिए कि मेरे को कम बोलना है, बस ये दिमाग में रखिए। तो अपने आप थोड़ा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन सर, नो प्रॉब्लम। सर थैंक यू ये सर। वो कलाकार हैं जो जब स्टेज पे उतरेंगे ना, मीन्स एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉइस, याद रखिएगा मेरा स्टेटमेंट, तब उनकी स्माइल भी होगी, तब वो कम ही बोलेंगे, और तब उनका परफॉर्मेंस परफेक्ट ही होगा। अभी क्या सर होता है ना, आपको सर का वो माइंड सेट नहीं होता है। माइंड सेट एक पर्टिकुलर, यहाँ पर बैठे वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, बट जैसे ही वो वहां पर जाएंगे ना, द मोमेंट ही एंटर्स, उनका सर अपना एक्सपीरियंस बोलता है, और सर की बात ही कुछ अलग है। उनको मैं मीन्स मुझे तो अच्छे लगते हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है। एक बार कोई चीज उनके दिमाग में बैठ गई, यानी वो ऐसे बोलते हैं ना हम कि पलक में समझ जाते हैं, पलक का इशारा होता है ना, वो काफी होता है। ऐसे पर्सन है ये दिनेश सर, कि अगर उनको एक छोटी सी भी हिंट मिली ना, तो उनको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ सर एक्सपीरियंस, वो करेंगे। और जब आप देखिएगा सर के जो ये लिखा हुआ है साक्षी मैडम ने, इज वेरी ट्रू, सी इज वेरी ट्रू, कि 40+ मार्क्स एक्सपेक्टेड है, अगर सर का झगड़ा ना हो जाए वहां पर जो सर ये बहुत बड़ी पैनल बात कर बैठे। क्योंकि सर अड़ सही। जाएंगे वहां पर, अगर उनके साथ अगर कुछ गलत बोला ना पैनलिस्ट ने, तो सर उस पैनलिस्ट को सुना के आ जाएगी कि भाई नहीं 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 पैटर्न नहीं एजेंट रहा नहीं, साइड में, पहले हम आपको वो संभाल दे। नहीं नहीं सर, तो डरना क्यों है? हमने हम इतनी मेहनत करके हमने पेपर 1 पेपर 2 दिया है, अब पेपर 3 में हम क्यों लड़ेंगे सर? सही बात है सर, बट वो नेचर है सर, अब क्या ही हाँ, करेंगे। सही है, कई आपका बार जो आपको नेचर है ना, नहीं कर पावर है पाता अपने आपकी। आप को। जैसे सर ने बताया कि आप को पता नहीं चलता कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, तो वो चीज है सर, तो उसमें मेरे को कंट्रोल करना है।
वो हो Thank जाएगा you, sir. सर, डोंट वरी। अब तो 100% हो जाएगा अपने। एक्चुअली क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज नेचुरल क्लाइमेट जो सर ने बोला सही है। और जो सिमुलेशन होता है, तो उसमें सिमुलेशन में कितना भी आप बोलो इंटरनली यू आर लिटिल फ्री टू यू स्पीक, बट द मोमेंट यू गो इनटू द रियल फील्ड, वहां पे थोड़ा सा You तो want to स्ट्रेस speak? आता है, एंड दैट कीप्स यू हम्म, कंट्रोल। तो बोलते हैं ना, डर कभी अच्छा होता है। तो जी sir. जी. अभी एक्चुअली अनुज सर वैसे कर ही लेते हैं टाइम, क्या? और विनोद सर को भी आप कभी भी कोई फार्मेसी से रिलेटेड कहीं पर भी आप मेडिकल में उनको भेज दो, सर बिजनेस करके ही वापस आएंगे, उससे पहले वो वहां से बाहर ही नहीं निकलेंगे। वो उनका Wow. फिक्स है। नहीं नहीं, विनोद सर आपको बताना है कि वाइवा वो इसमें आपने क्या किया था वहां पर जाके, वो मैं स्टोरी आज आएगी मैं हंड्रेड वहां परसेंट पर बताऊंगा सर। आज सर। जी. मैं बताऊंगा सर, बट अनुज सर को वेट मत कराइए, ही इज वेरी सीनियर एंड आई डोंट वांट टू। लेट्स लिसन टू हिम, वी विल टॉक ऑन दिस लेटर लास्ट। श्योर सर, श्योर सर। अनुज सर आपके लिए। Uh, Good evening to all. गुड इवनिंग सर। Good evening, Am I sir. audible? गुड Am I इवनिंग सर, यस audible? यस सर। यू आर सर। Okay. Uh, यस यू आर सर। sir. Javeed sir, you have told a lot about me in hyperbolic style. So it's all, you know, it was your teaching that helped me a lot during the patent agent examination 2022. So it was all by your guidance. Uh, uh, so in this batch, how many students are there? 23। 23 are there. Okay. uh, ठीक है। आज मेरे ख्याल से सर, मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स कम है, राइट? यस सर। अभी नहीं सर, 12। उसमें से पेपर वन के भी मार्क्स जिनके कम होंगे वो भी नहीं आएंगे ना। अब तो अच्छा, वाइवा वो इसके लिए प्रिपरेशन है। अब रिजल्ट रिजल्ट आ चुका है क्या? नहीं सर, अभी पेपर वन की आंसर की आ चुकी है। अच्छा, आंसर की आ चुकी है, ठीक है। पेपर टू का तो एवोल्यूशन मींस हाँ हाँ, क्वालिफाइड है या नहीं है वैसा ही नहीं आता वो है। तो अभी पता नहीं चलता है। ओके, ठीक है। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यू नो, I could able to remember all the sections and rules at that time. लगभग मैंने सारे सेक्शन और रूल्स मैंने सारे मतलब याद किए थे, और जेवियर सर ने प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी करवाई थी उस समय। बट इवन आफ्टर दैट आई कुड नॉट स्कोर वेल इन माय पेपर वन। मेरे मेरे ख्याल से अराउंड यही कोई 68 के करीब मार्क्स मेरे थे शायद। अभी मुझे क्लियरली नहीं है, बट इसी के आसपास थे। और 2022 में फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ था पेपर टू का, क्योंकि 2022 से पहले जो पेपर टू का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, उसमें यूजुअली थ्योरी ज़्यादा थी। मतलब कि आपका कोई सेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया, अपोजिशन कैसे फाइल करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट उसमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं था, ठीक है। तो पेपर टू हमारे लिए अचानक से बहुत नया था। तो हुआ क्या कि मतलब पेपर टू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, बट somehow आई मैनेज दैट पेपर एंड आई कुड एबल टू गेट अराउंड 52 मार्क्स। तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। 68 मेरे पेपर वन में आए थे, और 52 पेपर टू में, मतलब लगभग इतना मेरा स्कोर हुआ था। तो पेपर टू का तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पेपर वन का जो मार्क्स है वो तो पेपर जो आपका आंसर की थी, आंसर की से मैं मतलब उससे पता चल गया था कि मेरे 68 मार्क्स आने वाले हैं। तो
पेपर वन पेपर टू दिया। जैसे ही पेपर मेरा जैसे ही वो मेरा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं आया। तो फिर जो कार्बन कॉपी होती है, जब मैं घर पहुंचा, मतलब मैं मेट्रो में था। आई एम बेसिकली फ्रॉम देहरादून, सो आई वेंट दिल्ली फॉर एग्जामिनेशन। सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक, so that time I was in metro, and I was checking out my carbon copy, that I have filled all the details, correct or not. तो जब मैंने उसमें देखा, तो मैंने देखा कि मैंने तो सर्कल ही नहीं किया, उसमें बबल ही नहीं किया। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। रोल नंबर तो सही भरा था, लेकिन मैंने बबल्स नहीं किए थे। तो फिर वो ब्लंडर था। फिर मैंने जयवीर सर को कॉल किया कि सर मैंने ऐसे कर दिया है। फिर जयवीर सर ने कहा कि भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, आपने वो लिखा हुआ है। और जब ऑनलाइन वो आपका OMR शीट को स्कैन करेंगे, तो कुछ ना कुछ मतलब वो उनको मिसिंग लगेगा, तो वो मैन्युअली उसको करेंगे एवेल्यूएट। तो थोड़ा सर ने मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिया। तो फिर इस तरीके से फिर जब रिजल्ट आया, नहीं, पेपर वन का सर मार्क्स पहले बताते हैं क्या, ये डिस्क्लोज? हाँ, नहीं बस सर, वो वो पता। क्वालिफाई क्वालिफाई, हाँ क्वालिफाइड। क्वालिफाई। हाँ, क्वालिफाई का जब रिजल्ट आया, मतलब क्वालिफाई जब मतलब पेपर टू के लिए जब लिस्ट रिलीज हुई, तो वहाँ पे मतलब मेरा था वहाँ पे, तो मतलब मुझे लगा कि अरे चलो अभी होप है। तो अब फिर जब क्वालिफाई में, मतलब क्वालिफाई जब पेपर वो वाइवा के लिए जब मैं हो गया, तो फिर अगेन फिर एक टेंशन हुई। टेंशन क्या हुई कि भाई चलो ठीक है, इसमें तो मेरे 68 मार्क्स हैं। पेपर वन में 68 मार्क्स हैं, वो मेरे को क्लियर था। पेपर टू में मैंने मतलब उम्मीद की कि भाई 50 से तो ज़्यादा आएंगे नहीं। और मैं उसके क्लोज भी था, मेरे 52 आए थे। बिल्कुल, मतलब मैंने सही गैस किया था। 50 मार्क्स में लेके चल रहा था। तो अगर मतलब इसको देखें, तो मेरे 118 मार्क्स बन रहे थे। तो मुझे लगभग 32 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, और मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे को ये, मतलब कि ये वाइवा में ये आएंगे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा था। तो फिर फिर मैंने जयवीर सर को कॉल किया। मैंने सर से बात की कि सर ऐसा ऐसा है। तो फिर सर ने बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्रिपेयर करो, है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा वहाँ पे मतलब उसको दिखाओ। तो ये मतलब ये मुझे हिट हुआ कि हाँ भाई, मेरी स्ट्रेंथ की है। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट की कि भाई मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है क्या। तो दैट टाइम आई हैड 3 granted patent and more than 20 filed patents that time. So that was my strength, and I had good idea of filing patents. मतलब मेरे को जो भी फाइलिंग प्रोसीजर है, वो बहुत अच्छी तरीके से मैं मतलब उससे मतलब यूज टू था। और मुझे वो पता था फाइलिंग कैसे होती है, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे तो मतलब आई कैन आंसर। तो मैंने थोड़ा सा इसको, मैंने बोला कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैंने उसको मतलब थोड़ा ध्यान में रखा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मतलब अगर एक्ट से वो पूछेंगे, तो हो सकता है कि नर्वसनेस की वजह से मैं चीज़ें भूल जाऊं, है ना, और उसका बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है वहाँ पे। तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रेटेजिकली वहां पे चला कि भाई मैंने फिर स्ट्रेटेजी बनानी चालू की कि भाई मुझे जो इंटरव्यू देना है, वो अपने हिसाब से इंटरव्यू चलवाना है ना। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी वहां पे, कि मुझे इस तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने एक लिस्ट बनाई, जिसमें मेरे ग्रांटेड पेटेंट्स थे और जो मेरे फाइल्ड पेटेंट्स थे, वो मतलब उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट लेके मैं मतलब अपने साथ में गया था इंटरव्यूअर पैनल के पास।
और फिर जब वहां पे गए तो हुआ क्या कि जिस पैनल के पास मेरा मतलब जिस पैनल के पास मेरी मतलब जिस क्यू में मैं था, तो वहां पे ना सबसे सीनियर मेंबर थे, 3 लोग थे वहां पे। एक एक लेडी थी और 2 सर थे, और सारे 50 प्लस। तो जो मुझसे पहले गए तो उन्होंने बोला यार वो तो बिल्कुल एकदम उधेड़ रहे हैं सब कुछ, ये है मतलब पूरा उन्होंने एक्ट खोल के रख दिया है। तो जो भी आ रहा था वो टेंशन में आ रहा था, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गया। बट मैंने मतलब जो मैंने स्ट्रेटेजी बना के गया था कि भाई मुझे अपने हिसाब से इंटरव्यू मतलब मुझे देना है। तो फिर फाइनली मेरा नंबर आया, मैं वहाँ पे गया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मतलब आई वॉज लिटिल बिट नर्वस। तो उन्होंने पहले मुझे दे आस्क मी टू सिट। मैं बैठा वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप नर्वस लग रहे हो, आप ऐसे करो पानी पी लो, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल। तो इस तरीके से मैंने बोला। तो फिर देन दे आस्क्ड मी टू स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो अ, मेरा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था कि उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने बोला कि ओके ठीक है। अ, फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन फायर किया, बट मैंने फिर उनको इंटरप्ट किया। मैंने बोला सर, बिफोर स्टार्टिंग इंटरव्यू आई वुड लाइक टू शेयर माई अचीवमेंट्स विद यू। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कि अरे यार, मैं हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये हो रहा। उन्होंने बोला ठीक है चलो ठीक है, पहले आप दिखाओ क्या है। तो फिर मैंने वो, क्योंकि मेरे पास कुछ और रास्ता था ही नहीं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल इंटरव्यू देता वहां पे तो शायद मैं आज पेटेंट एजेंट मैं नहीं बन पाता। तो मेरे पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, तो मैंने इंटरप्ट किया। मैं बोला सर पहले लेट मी शो यू माय अचीवमेंट। तो फिर हुआ क्या कि फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप दिखाओ। तो फिर मैंने अपना वो जो भी मेरे पेटेंट्स थे, ग्रांटेड पेटेंट्स थे, फाइल्ड पेटेंट्स थे, वो मैंने उनको दिखाया और मैंने बताया कि सर आई एम एन इन्वेंटर एंड आई हैव 3 granted patent, more than 20 filed patent applications, and more than 25 research publications I have। तो फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो आपस में मुस्कुराए। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे मतलब वो ट्रैप में आ गए मेरे, वो फिर मेरे ट्रैप में आ गए। फिर फिर उन्होंने मेरी इन्वेंशन के बारे में मुझसे पूछा कि मतलब कि आपने क्या किया किया है आप बताइए। तो फिर उसमें तो क्योंकि सब कुछ मेरा काम था तो मैं तो बहुत अच्छे तरीके से उनको बताया। फिर उससे रिलेटेड फिर वो क्वेरीज उन्होंने पूछी कि भाई स्पेसिफिकेशन के बारे में उन्होंने पूछा। तो वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया। फिर उन्होंने फॉर्म्स के बारे में पूछा। तो वो सारा सब कुछ मैंने पूरा मतलब अपने हिसाब से, वो कुछ बाहर पूछ ही नहीं पाए। वो मतलब वो प्रोफाइल में ही मेरे मतलब वो उसमें वो खो गए थे उस समय। फिर उनका एक क्वेश्चन आया कि भाई आप पेटेंट एजेंट क्यों बनना चाहते हो। तो फिर मैंने बिल्कुल एक अनरिलेटेड आंसर दिया। मैंने बोला सर मेरा जो पेपर 1 है वो मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा था, बट इवन आफ्टर going through the sections and rule deeply, even after that I couldn't I couldn't score well। तो उन्होंने बोला कि कैसे भी तो रिजल्ट आया नहीं। मैंने बोला सर वो आंसर की आई थी तो उससे मेरा 68 आ रहा है स्कोर। और पेपर 2 में मैंने कैसे मतलब कैसे क्लियर हो गया, मतलब 50 से तो ज्यादा उसमें होगा नहीं। तो मैंने उनको घुमा फिरा के मैंने उनको ये बता दिया कि मेरा पेपर 1 और मेरा पेपर 2 वो मेरा अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला सर कि अगर मेरे 32 प्लस अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं तो आई वुड बी ए गुड पेटेंट एजेंट। तो मैंने वो पूरा उनको फिगर वगैरह वो सारा उनको उनके दिमाग में क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी हूँ।
मतलब एमए साइकोलॉजी हूँ, तो मैंने वो पूरा मतलब मैंने सब कुछ झोंक दिया अपना। तो तो फिर उन्होंने फिर आपस में उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, यू विल डू गुड, डेफिनेटली यू विल बी गुड पेटेंट एजेंट। मैं बोला डेफिनेटली सर, क्योंकि मेरा मतलब रिसर्च बैकग्राउंड भी है, आई अंडरस्टैंड इन्वेंशन वेरी वेल। तो मुझे पता है कैसे ड्राफ्टिंग होनी है, और कल के दिन किसी दूसरे इन्वेंटर को उसकी इन्वेंशन के लिए मतलब किस तरीके से गाइड करना है, तो वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरा जो पूरा इंटरव्यू है वो इसी तरीके से रहा। मुझसे ना कुछ उन्होंने सेक्शन से पूछा, ना कुछ रूल पूछे, कुछ भी नहीं पूछा। बस वो मैंने अपने हिसाब से मतलब, अब हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी रही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी जब मैंने ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन दिया था, तो वहाँ पे मतलब मैंने जब ये बोला कि यार मेरा पेपर टू अच्छा नहीं गया है, तो वो थोड़ा वहाँ पे जो कंट्रोलर थे वो चिढ़ गए। हाँ, वहाँ उन्होंने मेरे को पूरा एक्ट और रूल से सारा वो पूछा, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मतलब एक्ट और रूल्स मतलब पेटेंट में बहुत अच्छे तरीके से किए थे, तो वहाँ पे भी मतलब एक प्रैक्टिस तो थी, तो अच्छे से वहाँ पे डिलीवर किया। तो वहाँ पे भी हो गया था मेरा। लेकिन वहाँ पे वो चिढ़ गए थे कि भाई अरे आप उसके बारे में भी डिस्कस मत करो कि आपका क्या कैसे गया है। बट ये जो पैनलिस्ट थे जिनके पास में गया, उन्होंने मतलब उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया उन्होंने। तो बाय गॉड ग्रेस मतलब मेरा पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। तो प्रिपरेशन तो मेरी बहुत अच्छी थी, जयवीर सर ने बहुत बढ़िया प्रिपेयर करवाया था, मतलब मजा ही आ गया था प्रिपरेशन में तो। लेकिन कितने मार्क्स दिए थे इंटरव्यू में आपको? मेरे आए थे सर 38 मार्क्स। ग्रेट। मैंने तो उनको 32 बताया था कि भाई 32 तो दे दो है ना। छह बट नंबर मुझे, सफाई के सर। जो हाँ सफाई से आपने सब कुछ बता दिया उनको। हाँ, तो 38 मार्क्स उन्होंने मुझे दिए थे, तो मतलब मतलब अच्छा स्कोर था 38। तो इस तरीके से मतलब मेरी जर्नी रही, इस तरीके से मतलब हुआ मेरा क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैंने सेक्शन मेरे को नहीं आते थे, रूल्स मेरे को नहीं आते थे, बहुत अच्छी तरीके से आते थे। बट होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप कई बार चीजें भूल जाते हो, है ना। तो उसके लिए आपको आपका स्ट्रेस किस तरीके से रिलीज करना है वो आपको आना चाहिए। तो मेरे को ये बेस्ट मतलब जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो मैंने मतलब वो जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसकी उसको मैंने यूज किया। फिर जो मेरा मतलब क्या कहते हैं, जो मेरा नो हाउ कह सकते हैं, है ना, आईपी की लैंग्वेज में, वो जो नो हाउ है साइकोलॉजी का, वो मैंने थोड़ा वहाँ पे यूज किया। और मतलब इस तरीके से फिर मेरा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू देता तो शायद मतलब मेरा क्रैक नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे आगे और पीछे जो भी लोग थे वो किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, जबकि उनके क्या कहते हैं उनके पेपर 1 और पेपर 2 में मेरे मुझसे ज्यादा मार्क्स थे। उसके बावजूद भी उनका मतलब वो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उनके वाइवा में बहुत कम मार्क्स थे। लेकिन मेरा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वाइवा। तो वाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा उसके लिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप उस स्ट्रेंथ को कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब अपनी एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं हाँ, मेरा प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छा है। मतलब आई आई हैव फाइल्ड मोर देन 3000 पेटेंट एप्लीकेशन, और मतलब करीब 300 के करीब मैंने डिज़ाइन एप्लीकेशंस अभी तक फाइल की हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑल बिकॉज ऑफ जयवीर सर। तो तो ये सब कुछ रहा है अभी तक।
सर आपने जैसे हाँ बताया आजू बाजू वालों के बहुत कम मार्क्स थे वाइवा में, तो कितने कितने थे, कुछ है आइडिया सर? थोड़ा हमें पता लगे कितने कम मिल नहीं, सकते देखिए 20 भी लोगों के आए थे, 18, हैं। 20, साक्षी मैम हंस रहे 22, हैं। 24 इस तरीके से लोगों के मार्क्स आए हैं। अच्छा 20 भी हैं। हाँ हाँ, 20 भी आए थे, 24 आए थे, 25। ओके। हाँ हाँ। तो इस तरीके से मार्क्स मतलब आए थे वहाँ पे बाइबल में। और अभी क्या, अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी ना जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ पे ना नए कंट्रोलर हायर हुए हैं। ठीक है। तो यार नए, हाँ, अभी नए कंट्रोलर हायर हुए हैं, तो अभी जो आपका इंटरव्यू, जो आपका प्रोसेस होगा, उसमें न्यू कंट्रोलर्स भी होंगे। और जो नए कंट्रोलर हैं वो आप मान के चलें कि उनको जोश है ना कि भाई हमें कुछ करना है। तो वो वाला जोश आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे सामने जो मतलब इंटरव्यूअर थे वो 50+ थे सारे, ओल्ड थे। ठीक है। तो मतलब देवर ट्रीटिंग लाइज, देवर दे हैड ट्रीटेड मी लाइक ए चाइल्ड, कि भाई बच्चा है, ही इज लर्निंग। तो उनका ये वाला उनका अप्रोच मतलब था। तो अभी क्या है कि मतलब जो इंटरव्यूअर होगा वो आपकी एज के आसपास ही होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी एज से भी कम हो। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको मतलब हाँ, पोलाइट आपको होना है। मैं बहुत पोलाइट था। मतलब मैंने जैसे एक मैडम थी और दो सर थे, तो मैंने इक्वल अटेंशन सभी को दिया, मैम को भी और सर को भी। तो मतलब जो आंसर दे रहे थे तो उसमें मैम और सर दोनों को इंक्लूड करते हुए मैं वो दे रहा था आंसर उनको। तो वो ये सारी चीजें भी आपको मतलब इंटरव्यू अटेंड करना, दैट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अगर आप इंटरव्यूअर की साइकी को अगर आप सही से रीड नहीं करेंगे ना, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू दे ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपका पैनल बड़ा होता है ना, हो सकता है कि इस बार 4 लोग भी हों। और जब पैनल बड़ा होता है ना, तो ईगो क्लैशिंग बहुत होती है कि भाई मैं पूछूंगा, वो कंपटीशन उनमें रहता है। तो कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर का ईगो हर्ट होता है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपके ग्रेड अप एंड डाउन करें। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि कैसे वहां पे बैलेंस बनाना है। मैंने मतलब मेरा जो मतलब वाइवा के जो मार्क्स हैं ना, वो बस ऐसे ही आए। वो सारा वो इंटरव्यूअर को रीड करके ही मैंने मतलब स्कोर किए मार्क्स। क्योंकि अगर वो एक्ट से पूछते तो मैं इतना नर्वस था कि मैं बताऊं आपको, मैं रिकॉल कर ही नहीं पाता। बहुत सारी चीजें मैं रिकॉल नहीं कर पाता। राइट। बट मैंने उनको एक्ट से कुछ पूछने ही नहीं दिया। तो इस तरीके से चीजें रही। बाकी जैविक दैट्स रियली नाइस सर। मीन्स बाकी मैं जयवीर तो, सर से तो मैंने डिस्कस किया था सारा, वो मैंने आपको बताया था सर, मैं हाँ, सर्कल आपकी करना भूल गया हाफ हूँ एन सब आवर कुछ की, में। हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है, आपकी सारी कन्वर्जेशन। बट सर यस एक यस। बात तो आपकी माननी पड़ेगी, योर सिंप्लिसिटी इज योर बेस्ट पॉलिसी सर। आप जितनी सिंप्लिसिटी से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, मान लेते हैं आपकी एक्सपर्टीजम है, वो भी आपने मानी। यू हैव फाइल्ड 3000 पेटेंट्स, डिजाइन सो मेनी एप्लीकेशंस, बट एट दैट टाइम आपने जो फेस किया था वाइवा वॉइस में, जिस तरीके से किया था, मैं तो यस हूं आपके प्रोसेस में उसमें इन्वॉल्व, तो आई न्यू ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन विदाउट exaggerated things, that is really nice of you sir. I am a big fan of yours sir. क्योंकि जो ये आपकी थैंक यू सिंप्लिसिटी है, सर, थैंक मुझे यू। तो सर फाइलिंग करवाना, पहली फाइलिंग करना, वो मैंने यस। आपसे सीखी है। तो मेरे गुरु तो आप है। जहां अरे पर भी सर, मैं गुरु तो आप आपको ही मदद कर हैं। पाए, जहां पर मैं आपको मदद कर सर पाया, दैट देखिए, इज ऑल्सो गुड। देखिए बट देखिए रियली आपकी, नाइस सर। हाँ, आप आपका जो अंदाज था सर मतलब पढ़ाने का और मतलब चीजें याद करवाने का ना, वो तो वो हमेशा याद रहेगा सर।
क्योंकि अभी मैं भी है, दूसरे मैं भी है, वरा प्रसाद सर मैं भी है, अभी है, साथ में ही है। क्योंकि सर मैं एकेडमिक्स, मतलब मैं भी आपकी तरह अभी तो मैं एकेडमिक्स मैकेनिकल। में पूरी तरीके से बाहर निकल गया हूँ। अभी मैंने आईपी लॉ फर्म अपनी शुरू कर दी है। बट मतलब एकेडमिक्स में मैं भी रहा हूँ, 15 ईयर्स मैंने एकेडमिक्स को दिए हैं। तो मतलब आप एक से बार सर ये इंटरेक्शन के बाद मैंने बहुत कुछ यूज किया है। जो आपकी प्रीचिंग्स है ना, टीचिंग प्रीचिंग्स हैं, वो बहुत मैंने इम्प्लीमेंट किया और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले उसके। गुड सर, बट अभी ये एक बार एंड हो जाए तो फिर हाँ। आप एक छोटा सा हमें एक गाइडेंस वाला सेशन, जैसे आपने मुझे गाइड किया था, सभी लोग भी हैं यहाँ पर, जो भी पर्सन इसमें अटैच होना चाहे, जैसे आप हम्म। ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे आप चीजों को, जैसे एक क्लाइंट के साथ जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फिर जो आप करते हैं ना मैजिक ऑन राइट दी सर, राइट सर। वर्ल्ड, वो एक हम्म। बार सर एक सेशन छोटा सा हम रखेंगे आपका, प्लीज आप बिल्कुल गाइड सर, कीजिएगा। श्योर सर, श्योर। वो रखेंगे सर, क्योंकि वो देखिए, एग्जाम पास करना, एक्ट को याद करना और रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना, वो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इसमें आपको, एक्ट में आपको कहीं दिखेगा ही नहीं कि भाई प्रॉपर ड्राफ्टिंग कैसे होती है, आपके ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, है ना। और फिर आपको मतलब क्लेम्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, तो वो आपको कहीं एक्ट में दिखेगा ही नहीं। वो तो मतलब जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, है ना, तभी जाके वो चीजें कर पाएंगे आप। So, sir, thank you very much once again for your presence थैंक यू and सर, sharing such थैंक यू सर। experience. किसी का कोई Now we are, क्वेश्चन है तो वो जी मतलब सर, एक बार हम आई वुड वरा लाइक टू। प्रसाद, ओके, हाँ, यस सर, आप प्लीज। जाना चाहते हैं सर? नहीं विड नहीं नहीं यू, सर, मैं अभी प्लीज सर। अभी आई एम देयर सर, आई एम देयर। जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो हम वरा प्रसाद सर एंड विनोद सर का एक बार सुन के फिर ओपन हाउस सेशन रख लेते हैं सर, एक बार वंस फॉर ऑल। ओके सर, ओके सर। यस सर, हाउ आर यू? जय हिंद सर, वरा प्रसाद सर। Good evening. गुड Thank इवनिंग। you for remembering me and adding to this call. And like you said, within this 5 minutes or 10 minutes discussion, I became a big fan of Anuj sir. I see he is a talented and with all his things. Maybe if with his passion, maybe I can be in touch with him. Definitely, I can learn a lot of because I started learning drafting now, slowly, slowly. Um, okay, for my experience, first thing is like I should acknowledge that if I didn't join JV sir classes, definitely I would have not passed the exam even today. Trust me. Um, it's blindly just trust what JV sir said. I followed that only. Nothing else I did. I just followed. He says write down. I wrote. He says record. I recorded. Otherwise, nothing else I did. When he asked me to join and share my experience, probably I'm on a positive side. I do not have much, but I wanted to share what shouldn't be done, like I did. Maybe I will quickly because all these are all afterthoughts. When I did the exam interview, give the interview, I didn't think of all these things. But then once I passed the exam, then okay, something went well, but a lot of things didn't go well. I should have thought out, or I should have done something different. Like Anu sir said, focus on your strength. Probably I didn't do it. It was like say, I'm calm. I went. What happened on the day? I stay in Pune and my interview is in Mumbai. I started from Pune at 5 in the morning in a car with friends who are also giving me interview like me. So it was raining heavily. Heavily means heavily. So what we are doing is in the car we 4 5 people started remembering each sections and rules, forms, fees, vagara vagara. Someone will ask and I'm driving and I'm also answering, try to answer. I will ask a question like that. We started like trying to remember those things. And we went there, that hilltop and hilltop.
there is a mall. We parked our car in the mall and we freshen up there only, and we just walk till the patent office. Nothing is there to eat also in that area. For people who are giving in Mumbai, remember that there is nothing you will get there. And when we entered, we are all divided into groups. I think there are groups around, say, 20 numbers, something like that. 6 teams, 6 panels. Each panel is interviewing 20 people. Now imagine I reached the office at 8:30. Can you imagine when my interview happened? It happened at evening 6:30. We stayed there. No other option. No other option. We stayed there. Nothing to eat. Lunchtime, we just randomly walked and found some shop. We had some sandwich. That's all. That's all. Nothing is there. So with all this stress, one more stress comes in is slowly people coming from the interviews, right? There is one panel number 1, asking questions for around 25 minutes, each individual. And it's really scary feedback at that time. So you are also will be getting all this feedback, and when you are in the office for interview, lot of people are there. You'll hear a lot of things, what's happening around, what your panel is going to look like, what other panels are doing, some random things you will learn. In the group also, Chevisar also will guide you on that. But these kind of things are happening other places also like that. So it was stressful day, but it was okay. I have friend there who is close friend with me, so we kept calm. And in my interview, when I went, they asked for the, like, say, similar to what earlier sir said. Anuj sir said, they asked like calm down, take water, like that. And what is the first and in my experience, when I am talking about like my experience, I had experience in preparation of patent drawings and lot of experience in patent search analytics also. So, and I also work with inventors every day. So that is where my quick introduction. Once it is done, my first question was, what is Form 5? Okay. And I went completely blank. My mind is not working. Everything is blank. I can't remember what is Form 5. I went blank. Then they said, okay, drink water one more time, relax. And then, but still I couldn't tell the answer. Then all the 3 panel members, they are senior people. I think each panel will have 2 officers from the patent office and 1 from non-patent office. So outside attorney will be there. All are senior people, aged people. So then they relaxed, and then they started asking other questions related to, like, say, my experience. And one particular question I remember is, they went to 2 patent drawings on that point. Patent drawings, they said, is it part of the, say, what things you consider in patent drawings, how do you prepare, right, all those things. And one particular question I remembered is, there is a feature which is disclosed in the patent drawings but not written anywhere in the description at all. No description written, but it was claimed in the claims. It is claim. Then he asked, is it allowable? Right? I thought for a moment. Then I said, yes, it is allowable. He asked, why? Why do you think? Is nowhere written in the description? Then why it is allowable? Then I answered, drawings are part of your complete specification. So it's part of your specification. So it should be allowable. Probably that is the answer. It impressed them, probably. That's my guess. Couple of questions they have asked more about sections 35, like that, and form 15, something like that at the end.
not many questions because it's too late by the time, right? And I am probably last, but third or second. After me, there are only 2, 3 people more. So it was too late, not too many questions. Then after all those things, just I was about to, they said, okay, you can go. Then I recalled what is Form 5. Then I told what is Form 5 at the end, just before my exit. I told correct answer, and they said, okay, don't worry. And by that time, they already gave the marks. They write it in the paper, right? Each person gives, I think, 30 marks. So 10. They rate you on 10, and they compile all three. That's what I believe. Probably it might have changed, but at that time, that's what I believe. They do that. I didn't have any hopes at all. After coming to by outside, I do not have any hopes. I know I might need some 18 marks from the Viva because I did okay in first paper. First paper went well for me, so from the key only I came to know. So, but finally, I think I got around 35 in the interview. I was very, very happy after the result is that at least I passed the exam. That's what the more important thing for me. But at that time, it was so tensed and not sure with all those things. And you know what time I reached home? I reached home at 1:30 in the night next day. We Oh, started back at 7:30 because all we went together, right? all, So so all everybody, need to go together. and by the time I left or I started to leave from the patent office, the the controller, Unat Pandit sir at that time, he also started leaving. But still, the first panel is still interviewing. Okay, that's how it was. And I heard many people didn't pass from that first panel. It was like that. But you could, you can, but you can. Yes, I did. You did, correct. One more panel, my close friend who couldn't pass at that time interview, they asked some question about some section. No, they didn't ask anything about section, but I think it's about vessel, foreign vessel question. And my friend was like, say, dicey whether his answer is, so he couldn't answer that. But the examiner became very angry for some reason, and I think she or he, she gave the section book to him and said, "You go through the section book and answer me right away." Yeah, they did that. They did that to him. So, not everybody will have this kind of stress, but be prepared at the same time. Cool, like sir said, play with your strength. So, at the same time, we should not overboard with what anything we say, because they pick up from there. Anything we say, they pick up from there. That's easy for them. That's an easy trap based on our experience, based on our daily work. They'll pick from there because that's the easy thing and easy to judge also for us, for our talent like that. Wonderful, sir. Thank you very much for sharing your journey. And the point which you have already mentioned, the drawing is also a part of a specification. And that's why if it is directly mentioned in the claim, then it's perfect because it's already covered in the specification. Very enlightening journey you have shared. And I hope everybody gets connected with this journey and the kind of experience that you're having. Thank you very much once again, sir, for being here and for sharing such valuable experience. Now I move forward to Vinod sir. Vinod sir, यस सर। है क्या आप सर? आ रखे अरे सर, जब जब तक जयवीर है तब तक हम ऐसे बोलेंगे।
अरे सर मैं क्या ही हूँ, मेरी मेरी तारीफ नहीं, आप बताइए आप क्या करके आए और आप कैसे ये सभी मैं लोगों को। बताता हूँ सर। सर पेटेंट एजेंट का एग्जाम का आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन आई वाज अरे माय विनोद, डूइंग माय। सॉरी इंटरप्ट। सच बताना, सच बताना, झूठ मत बताना किसी को। हाँ वो अरे संजोग भी है सर, आ रहा हूँ उसी लाइन पे। तो क्या हुआ सर, आई विल टेल यू, बिल्कुल व्हेन आई सच वाज सच डूइंग। Yes, yes. Sanjog is my classmate, sir, so he knows me well. So I will tell you, honestly, I will tell you, but I never lie also, Sanjog. But again, the way you are saying, I have to be little this. Regarding patent agent, I was honestly not aware of anything. In my LLB final exam that time, no, my librarian told me, Vinod, you look very scientific. Why don't you write patent agent exam? तो मैंने पूछा क्या है, एंड देन इट वाज लॉ। तो मैं बोला आई एम विनोद कुमार, एलएलबी कर रहा हूँ, ये एक सब्जेक्ट क्या है ये इसमें। तो जस्ट लाइक दैट आई रोट एंड आई गॉट इन पेपर वन आई गॉट 68 मार्क्स, जस्ट दैट। अब तो फर्स्ट टाइम में, एंड उसमें पेपर टू में फेल हो गया मैं। तो एग्जाम में फेल हो गया, तो मैं बोला भाई ये क्या, मैं फेल हो गया। एंड नो एक्सेप्टिंग फेलियर वाज वेरी टफ फॉर मी, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया। तो फिर बाद में चलो कुछ नहीं करना है, तो देन अगेन पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग वो अपने साइबर सिक्योरिटी का हुआ, तो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टेड लर्निंग इन प्रवीण गांधी कॉलेज, एंड संयोग इज माई क्लासमेट फ्रॉम दैट टाइम। एंड इन वहाँ पे भी हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी, कलानी मैडम, एंड दो चार टीचर लोग थे, दे यूज टू टेल अबाउट पेटेंट एजेंट। एंड देयर वाज अ प्रोफेसर, आई थिंक संयोग विल रिमेम्बर, रॉडनी राइडर फ्रॉम दिल्ली। तो ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग वो गाथा में। देन एक बार फिर मेरे को करते करते ये जबीर सर का वीडियो मिला, तो मैं बोला यार बंदा तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद से सुना होना, फिर मैंने ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम, मैं बोला सर ये बताओ पास करा सकते हो क्या पेपर टू मेरे को। तो एंड हाउ ही सेड आ जाओ आ जाओ। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई कैन टेल यू, स्टिल पेपर वन मैंने एग्जाम दिया, जब सेकेंड टाइम सर के साथ एग्जाम दे रहा था पढ़ाई करके। तो टिल माई लास्ट डे मतलब आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आई विल क्लियर पेपर टू, बिकॉज सर को ही पता है, सर हैज टेकन स्पेशल रोल इन द ओनली थिंग विच आई कैन टेल यू, इट्स माई वाइफ स्टेटमेंट कि कि जब मैं लिखता था ना, तो मेरी राइटिंग में खुद भूल जाता था कि क्या लिखा हूं मैं। एंड वहां से मेरी वाइफ ने मुझे बोला था, विनोद यू हैव गॉट अ वेरी गुड हैंड राइटिंग नाउ। और तो थैंक्स टू जयवीर सर, तो माई डॉटर, माई वाइफ, एवरीबडी नोज सर। हाँ हाँ हाँ, ये क्रेडिट अभी भी 50% है, रजत सर को याद करो भाई, भूलना मत। हाँ नहीं, बंदा पीछे जयवीर पड़ सर गया था मतलब आपकी। सर, सर सर मैं अगेन क्यों अगेन सर बोल रहा हूँ, जयवीर। क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको स्टॉप करूंगा। दिनेश सर हाँ सुन रहे हैं सर, दिनेश सर। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ हाँ जी। बस बस सर प्लीज सर, हाँ सर आप नहीं कंटिन्यू कीजिए, दिनेश सर की सेम स्टोरी है सर, सेम हाँ। स्टोरी। सर प्रोफेसरों की तो राइटिंग भी वैसी है सर। वो स्टोरी था, ऊपर से ये अपना सहयोग का है ना सर, संयोग इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ आवर साइबर बैच, एंड ही इज ऑलवेज। तो उसको जापानीज बोलो, ये बोलो, इतना इतना कुछ वो जानता, तो मेरे को शर्म आता था यार मैं क्या जानता हूँ। तो मैं बोला मुझे कुछ करना है जो सहयोग नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम के बारे में थोड़ा उसको नॉलेज कम था, तो मैं बोला चलो मैं पहले पास कर जाता हूँ। और उसके बाद से ये दिया आपने, एंड फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड, देन आई टोल्ड एवरीबॉडी कि आई क्लियर दैट एग्जाम। तो संजोग के दिल पे लगा, साला विनोद बेवकूफ आदमी पेटी नजर बनेगा, मैं नहीं बनूंगा, तो भी एग्जाम दे रहा क्या बोल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अपना टीम में से सब लोग आगे बढ़े, मैं नहीं तो बताता तुम्हारे को। हूँ संजोग सर आपके बारे में क्या बताते हैं, मैं बताता हूँ। संजोग सर ने ये बताया कि सर है। विनोद सर जैसे पर्सन मीन्स द वे ही स्पीक्स, द वे ही कन्विंस समवन, नो वन कैन डू दैट। ये अभी तक उनका स्टेटमेंट है जो मुझे उन्होंने बताया, और मुझे सही भी लगता है। और सर कदम सर है ना, कभी भी वो गलत नहीं बोलते हैं, एकदम जो बोलते हैं वो नहीं, पक्का सही बोलते हैं। आई नो, आई नो, आई बट नो आपकी सर, सर प्लीज। वाइवा वाइवा वॉइस की जो जर्नी थी उसमें क्या क्वेश्चन आए थे? हाँ, कमिंग कमिंग टू द वाइवा वॉइस का सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब कि जो आप लोगों ने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि वाइवा में तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली मैं गया था, एंड इट वाज लाइक, फॉर्चुनेटली सर इट वाज वेरी, मेरे लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन बेसिक्स ही पूछा था। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, ये सेक्शन, वो 3D में जितने सेक्शंस बोले, तो मैंने नंबर वाइज रूल वाइज सर आप लोगों ने याद करा दिया था, मैं खटाखट उल्टी करते जा रहा था। तो सी वॉज टेलिंग कि जो मैडम थी वो बोली तुम्हारा बाय हार्टेड ऑल सेक्शन और व्हाट। तो मैं बोला कि सर मैं हार्ट में मैडम तो कुछ और ही रहता है, बट आई एम इन सेल्स, नो, सो मेरे को नंबर से तो ऐसे ही प्यार होता है, तो आई नो द नंबर्स। तो आई द ओनली थिंग विच आई ट्राइड, जैसे अभी पहले अभी सर
ने बोला था, नानू सर ने, कि आई ट्राई टू टेक ask them question which I wanted them to ask. तो कभी भी मैंने इंटरव्यू को मैं उसके हिसाब से नहीं चलता था। आई आंसर द क्वेश्चन इन अ सच अ मैनर कि कुछ मेरा वीक पॉइंट है और वो वीक पॉइंट मेरा स्ट्रेंथ होता था। तो द एग्जामिनर्स को सेक्शन आई थिंक 120 के आसपास ऐसे करके, तो दे ट्राई टू आस्क मी क्वेश्चन दैट डायरेक्शन, और वहां से मेरे को ये होता था कि देन मेरे हिसाब से आ जाता था। द ओनली थिंग वेयर आई कुड नॉट आंसर ना, वो जो अपना अभी मैं क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर वाला जो टेक्नोलॉजी का था, जो पेटेंटेड नहीं होता था, दे ट्राई टू आस्क, आई गेव द आंसर करेक्ट, बट व्हाई दे वर गोइंग सो व्हाई। तो मैंने बोला, मैडम आई थिंक इट्स बेटर, आई डोंट वांट टू गो सो डीप एंड स्ट्रेस माई सेल्फ, एक क्वेश्चन को माइनस कर देना, मेरे को आता नहीं है इसको। तो दे स्टार्ट, नो नो यू नो। तो मैं बोला, यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, सो बेटर वी नो ईच अदर मैडम, एंड प्लीज। तो ऐसे करके वो स्माइलिंग वे में हो गया तो इंटरव्यू, एंड कहीं पे स्ट्रेस तो लिया नहीं मैंने और उनको दिया And नहीं what तो। about the question related to section number 48, rights to the patent agent, rights to the सर patentee? वो सब जो था ना सर, आपने जो उस सर का, जयवीर सर का बेस्ट पॉइंट है कि द मोमेंट यू गो इनटू द पेटेंट इंटरव्यू, आप निकल के जो भी क्वेश्चन पूछा है तो रिकॉर्डिंग करके भेज देना। तो वो भेज दिया था। उसके बाद आई हैव गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी बिकॉज आई फॉरगेट व्हाट आई हैव रिमेम्बर्ड। सो Museo, तो museo, museo वाला है। सर मैं भूल गया हूँ सर, प्रैक्टिकली बहुत लाइफ Museo, में स्ट्रेस। museo, making, using, selling, importing, offer for हाँ हाँ, sale, वो सब बता, museo. मैंने सब आंसर बहुत अच्छे से दिया था ना। आप लोग बता, ये बच्चे आंसर देंगे, बट उसका बेनिफिट एक ही है कि वो जो अपने समझो होता है, कंट्रोलर मेरे साथ वॉकिंग करने आता है सर, मॉर्निंग वॉक करने। वो जो सर ने बोला ना, वारा प्रसाद ने, जो बॉम्बे पेटेंट ऑफिस के पास आएंगे उनको खाना मैं खिलाऊंगा सर, आपकी टीम को। मेरा घर बगल में ही है, बोलोगे तो होममेड बना के लेके आ जाऊंगा। दे डोंट हैव टू वरी फॉर फूड एंड उसके लिए, इसलिए। और वहाँ के गुजरात में भी जाएंगे तो गुजरात में जो इंटरव्यू लेने वाली होगी ना, वो मेरी दोस्त है सर। शी इज लाइक शी गोस एंड टेक इंटरव्यूज ऑल दैट। तो नथिंग टू वरी, बी कैज, मतलब बी आप लोग जैसे हो सब वैसे ही रहो सर। ऑल ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड। विनोद सिंह सर से एक ही सीखना है, कन्विंसिंग। किसी को भी कन्विंस Amazing. कर सकते हैं। मुझे अपना, ये कौन सा साइबर थी सर का नाम क्या था अपना? पंकज बाफना सर, बापना बाफना सर, अरे सर। बापना सर किसी को पानी नहीं पिलाते, तुम मैंगो शेक पी के आए उनसे। आज तक मतलब मुझे पानी तक नहीं पूछा। हाँ, मतलब विनोद सिंह क्या, True, मैंगो true. शेक, मतलब विनोद सिंह कुछ भी कर सकता है। मतलब रॉकेट सिंह के बाद है ना विनोद सिंह है इंडिया में। अरे Very true, sir. नहीं Very true. नहीं Now we नहीं, are बस having our all panel. Yes, yes, yes. Please. जी सर। नहीं सर, बस यही है ऑल दिस बिकॉज आई एम श्योर, बिकॉज जो आपका बैच है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, स्ट्रेस मत लेना। एंड ओनली थिंग जो अपना गीता का जो उपदेश है ना कि कर्मण्येवाधिकार रास्ते वाला, मीन्स जस्ट एंजॉय द मोमेंट। डोंट ट्राई टू पास, डोंट ट्राई टू फेल। अब तक कुछ करो नहीं, बोलो कि दिस इज द 10-15 मिनट्स आई वांट टू मीन्स इंटरटेन माई सेल्फ और गिव माई सेल्फ बेस्ट। क्योंकि मैंने को भी जब ये नंबर नंबर वाला था तो मैंने उस वक्त सीधे सीधे बोल दिया था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि ये है। हुआ मेरा तो बैकग्राउंड भी टोटल अलग था सर। तो व्हाई यू वांट टू बी लाइक पेटेंट एजेंट, इन्होंने ये भी पूछा था। देन आई सेड किया, तो तुम्हारा तो पूरा बैकग्राउंड ही सेल का, नो वे रिलेटेड टू पेटेंट। तो मैं बोला कि आई अंडरस्टैंड मैडम कि देयर इज एक बार मैं फेल कर गया हूँ, अपने एक गलत डिसीजन ले लिया है, एंड लाइफ इज लाइक अ वाई, इफ आई कीप ऑन वॉकिंग ऑन द रॉन्ग डिस्टेंस द गैप विल गो big and I will kill myself with my own dreams. So help me to correct myself. हाँ, माना मैंने गलत डिसीजन लिया, माना मैंने ये किया, but I wanted to correct myself, and people like you will give me the opportunity to where I can use my scientific knowledge, scientific equipment for the benefit of the country and people. So वहां पे अपने आप को ही बेचना पड़ता है, सेल्समैन नहीं काम आया मेरा तो सर प्रैक्टिकली। आज आप वो मूड में नहीं है, आपका जो चार्मिंग है ना मैम, तो मैं दिखाऊंगा सभी को 2023 की रिकॉर्डिंग्स पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा कि ये थे रिकॉर्डिंग विनोद दिखा दो सर। सर, रिकॉर्डिंग दिखा दो, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो आज मुझे लगता है कि कोई आपका बड़ा सा कोई बिजनेस हुआ नहीं है, तो जो आप करना नहीं चाहते नहीं थे लाइक वही। नहीं, बिजनेस तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिजनेस तो अरे मेरा सर, मैं भी इनफैक्ट, मस्ती मस्ती कर रहा हूँ, नथिंग नहीं एल्स सर। बिजनेस हुआ है। आपको मैं, आप जो आपने बोला ना शाम का जो लास्ट आपको यहाँ आने के पहले एक कस्टमर था जो मेरा टोटली अगेंस्ट में था, उसको भी जो अभी सहयोग ने नहीं बोला पानी पिला दिया, वो बेचारा बैठा के उसको ले दे के फिर मैंने वो कर दिया, एंड वी बिकम वेरी हैप्पी। एंड ही इज माई सीनियर फ्रॉम द सेम कॉलेज वेयर आई स्टडीड इन बॉम्बे।
तो मेरा एलएलबी का सीनियर बैच का, तो बोला विनोद मैं नेक्स्ट तेरे को पक्का हेल्प करता हूँ। सो ये है सर, बट एज फार एज यू, एक चीज मैंने जो सीखा है सर, अभी आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रुप में क्या होता है ना कि जो आप पहले जो आप बोले ना, जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि व्हेन यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ, नो यू आर फ्री, बट व्हेन योर वर्ड्स यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट सो मेनी लाइफ, तो वहां पे थोड़ा अंदर से डर लगता है, भगवान मैं कुछ गलत ना बोलूं कि किसी का गलत ना हो ऐसा। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट देयर द सेम वे यू लुक सी एट मी, बट मैं एक आई नो छोटी सर सी स्टोरी ये पीपल आर। बताऊंगा कि ये जो हाँ। क्रेश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स होती है ना, उसे रिकॉर्डेड वीडियोस में भी काफी लोग एक्सेस करते हैं। तो हम्म। जब विनोद सर एंड रजत सर, जब वो दोनों एग्जाम देने जा रहे थे, मीन्स हम्म। पेपर 2 की बात है, पेपर 1 के बाद जो ब्रेक होता है और पेपर 2 हाँ। आने वाला है, तो पेपर 2 के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए गए थे, तो किसी ने उनको देखा और बोला, आर यू विनोद सर, आर यू रजत हाँ। सर? हाँ। 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 तो रिकॉर्डिंग की वजह से उनको पहचान लिया कि ये लोग वही है। राइट। तो इतनी इसमें काफी फेमस हो रहा है वो। इसमें जयवीर एक सर भी चीज मुझे और था। विनोद सर की वजह से ही मिले। मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, बोले तो विनोद सिंह का आवाज आ रहा है इधर से, तो विनोद सिंह का आवाज कैसे आ गया बीच में रिकॉर्डिंग में? तो देखा तो विनोद सिंह यहाँ से सीख रहा है। वो बड़ा रिकॉर्डिंग सर सीरियसली जितने मुझे। लोगों के पास है ना, जितने लोगों के पास है, वो सभी लोग आपका नाम लेते हैं। ये विनोद थैंक सर यू सर। बढ़िया है, वो पूरा सेशन में सर है। इसमें एक बहुत मस्त बोलता हूँ सर, जब हम लोग का इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू में हम लोग थे ना, तो रजत सर मेरे साथ में ही थे इंटरव्यू देने के लिए। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो रजत सर तो बैठते ही प्रोफेसर वाला चालू हो जाते हैं। तो बगल के जो, आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं सारे लोगों से दोस्ती कर लिया था। तो रजत सर आए टाई वो पहन के ये करके, और सीरियस तो विनोद जी ये क्वेश्चन का रिवीजन करने लगे। तो मेरे को बोलते तू टीचर को हायर करके लाया है क्या? मतलब है ना कि अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए पर्सनल कोच लेके आए यहाँ तक, बोलो भाई ये भी स्टूडेंट ही है यार, ये दोनों साथ में एग्जाम दे रहे हैं। सो दैट वाज द इम्प्रेशन। तो उनका जो लेक्चरर का, रजत सर का, वो शुरू से ही चालू हो जाता है कहीं पे भी। हम्म। तो अब सर आपका जो डोमेन है, यू आर फ्रॉम द बायोटेक बैकग्राउंड, साइंस में अगर राइट मैं सर। अगर आपसे बात करूं विनोद सर। वरा हाँ। प्रसाद सर, आर यू फ्रॉम विच बैकग्राउंड, मीन्स क्वालिफिकेशन वाइज? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। Mechanical, and Anuj sir also mechanical engineer. So we are having these three panelists with us. So it's now open for Q&A session. If you are having any questions from the journey, from their experience, we right now it's a Sir, correct I have a one time. question from all the three judges. ये इन्होंने कोई भी क्वेश्चन आपकी फील्ड से नहीं पूछा किसी ने भी, बायोटेक से या मैकेनिकल से? पूछा था सर, ऐसा नहीं है, पूछा था क्वेश्चन, जी बिकॉज दे आस्क्ड मी, आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था जी बीच जी जी जी। में, दे हैव आस्क्ड, बिकॉज द क्वेश्चन दे आस्क्ड, नो सर, अभी देखो पास होके 2-3 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो उसमें क्या जी। होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिकलेक्ट, प्लस ऑनेस्टली लास्ट 20 डेज 25 डेज से रिव्यू मीटिंग, एनुअल रिव्यू तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो आई नेवर थॉट कि कर आई हैव रहे टू हैं। गो सो डीप। So I cannot recollect the question, but question रहता है, and they will never ask you out of the syllabus questions. They will help you, guide you during the, even they ask you the question, वो to the point act से बाहर पूछते ही नहीं है। और जी जितना आप जी। लोग का जितना आप लोग का प्रिपरेशन है, बस करंट अफेयर से टच में जो अपना रहिएगा ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। जस्ट दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग सो डीप इनटू व्हाट क्वेश्चन दे आस्क। दे लुक फॉर एटीट्यूड, जो अभी जो आपका एक मैसेज था ना, बी हम्बल, बी पोलाइट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, क्योंकि उनका ईगो तो बहुत फैंटास्टिक है। आपको कंट्रोलर का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अपने जो बॉम्बे कंट्रोलर के है, दे हैड प्लेड सम वन क्रिकेट मैच आपस में किए थे, एंड कंट्रोलर वाज आल्सो प्लेइंग, एंड वन नॉन देखो ना स्टाफ टाइप का वो भी था। तो किसी बैट्समैन ने एक शॉट मार दिया, और वो कंट्रोलर के पास गया, तो वो जो ग्रेड टू ग्रेड थ्री जो भी एम्प्लॉय था, उसने बोला कैच कैच कैच। अब कंट्रोलर को ईगो पे आ गया नो, कि अरे हाउ ही कैन आस्क मी टू कैच। उसने बॉल छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, बोला हाउ कैन यू आस्क मी टू कैच, इट्स माय ड्यूटी, आई वांट टू कैच, आई विल कैच, आई विल नॉट कैच। तो ऐसा ईगो होता है कुछ लोगों का। तो वी हैव टू हैंडल दैट 15 मिनट्स करके। तो ऐसा करना है। तो जो अभी जो सर ने बोला था, तो बी हम्बल, बी पोलाइट, बी स्वीट, मतलब ट्रीट योर पैनलिस्ट एज योर गर्लफ्रेंड, दैट्स ऑल, यू विल बी सक्सीड। ये मस्त बोला, ये पंच लाइन है। जी। वरा प्रसाद sir and Anuj sir, do you want to Like add something on it? like I said, हाँ। mostly
whatever details you tell in your introduction or in your details, they will ask that particular questions related to that. If they are going into your educational or experience questions, they will be limited to whatever we say. They don't go beyond into Okay, theory sir. and all those things. Okay, sir. Anuj sir, do you want to add something? यस सर। सर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मतलब मेरा यही सजेशन है कि जो उनका इंट्रोडक्शन है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्लान करें। प्लान करना है आपको कि मतलब क्योंकि जो आप अपना इनिशियल इंट्रोडक्शन देंगे उसी वो एक्चुअली क्या करता है, वो जो आपका इंटरव्यूअर है ना, वो उसके माइंड में एक मतलब एक वो एक क्या कहते हैं, वो एक क्वेश्चनेयर बाय मैप डिफॉल्ट तैयार हो उनके जाता है। सबकॉन्शियस में, हाँ उनके उनके सबकॉन्शियस में बाय डिफॉल्ट एक मैप रेडी हो जाता है कि भाई किस तरीके से उनको इंटरव्यू लेना है। ड्राइव करना है। हाँ तो जो आपका इंट्रोडक्शन है उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस फोकस करना करना है। है। और जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो उसमें रखिएगा आप लोग। प्ले विथ इट। हाँ उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। फिर एक अनुज सर, क्वेश्चन और बाकी था मेरा। बाकी अनुज सर, आपके आपने डोमेन से, कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ आपने आपके, इतना कॉन्फिडेंस चूज किया, भर दिया है हम लोगों में। यूर रियली, आप और विनोद सिंह सर ने आके ना यहाँ आज हम लोग को ना सही गाइड किया। मीन्स ये जो साइकोलॉजी है ना, थैंक यू सर। सामने जी वाले के साथ ये करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मीन्स ओनली कितना आता है उससे अच्छा ना हाउ यू आर डीलिंग विद द पर्सन। एंड ये सब है ना, ये हम लोग सोचना चाहते थे, लेकिन आपने सिखाया, थैंक्स फॉर दैट। और है ना, कुछ दिनों के पहले ना हम लोग का बॉम्ब ने किसी ने डिफ्यूज करके रखा था, आपने फिर से बारूद भर दिया हम लोग में। बिल्कुल सही थैंक्स कहा फॉर थैंक सर यू दैट। सर। थैंक यू। राइटली सेड। अच्छा देखिए सर, सर, एक एक और ये सब क्वेश्चन कुछ ना, पूछना चाह रहे थे। सॉरी टू इंटरप्ट, देखिए इंटरव्यू देना आर्ट है ना, सबको आता है मतलब जिसने भी मतलब जो भी पेपर वन पेपर टू क्लियर कर रहे हैं उनको आता है ना। बट दैट इज नॉट इनफ, है ना। आपको मतलब उसको प्रेजेंट, देखिए चलो ठीक है, आप पेपर वन पेपर टू वाइवा भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस करना है वो और इम्पॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत से एजेंट ऐसे भी हैं वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। दे आर नॉट इवन फाइलिंग एनी पेटेंट, राइट। तो वो वो भी वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिजनेस लेके आना वो और डिफिकल्ट टास्क है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आगे जाके सीखनी है। तो साइकोलॉजी आपको मतलब साइकोलॉजिकल वे में तो आपको चीजें सोचनी ही पड़ेंगी, आपको चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। जी सर। दिनेश सर, एनी फर्दर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे पेटेंट ऑफिस में कंट्रोलर्स होते हैं, ये जो बैठेंगे इंटरव्यू में, तो वो कंट्रोलर कौन से होंगे? असिस्टेंट कंट्रोलर होंगे, जॉइंट कंट्रोलर? हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही जी। सर। सर वो तो डेप्यूटी मतलब कंट्रोलर या असिस्ट? हाँ वो डिस्क्लोज करते नहीं है कि वो कौन है, बट हाँ मतलब उससे काफी सीनियर पोजीशन, वो मतलब उनको देख के लगता है कि वो काफी सीनियर है। वो नहीं। 2022 में था सर। बट जैसे हाँ जैसे आगे, जैसे सर ने कहा है हाँ, कि इस जैसे बार जैसे अभी शायद नए नए 2024, लोग भी, हाँ जैसे बहुत सारे मैंने ज्वाइनिंग है। मैंने ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन का मैंने जब दिया था तो उसमें काफी यंग लोग थे। जी। मतलब वो मेरे एज ग्रुप के वहां पे लोग थे जब मैंने हम्म। ट्रेडमार्क का मैंने दिया था। तो वो ट्रेडमार्क का भी मेरा बहुत अच्छा है, इंटरव्यू मेरा हमेशा ही अच्छा रहता है। पेपर बड़ा मुश्किल से क्लियर होता है। पेपर क्योंकि हाँ। मैंने कुछ एक कंट्रोलर जो यंग कंट्रोलर्स हैं इनसे मैं मिला हूँ, ईगो इनका बहुत कमाल का, आपका बिल्कुल सही कहा कि हम्म। इनकी ईगो से तो टकराव हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं। ये तो मतलब अपने आप को मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं। एक दो कंट्रोलर्स के साथ मेरा ऐसा सामना हुआ कि वो नाराज हुआ एक कंट्रोलर, तो उसके बाद वो काबू में ही नहीं आया।
Yes, Vinod sir. Do you want to add So something? yes, I wanted to tell sir regarding आप लोग को ना, you don't have to worry about the controller. You actually आपका लक्ष्य पेटेंट एजेंट के एग्जाम है. You should focus on the question rather than the person who is going to take your interview. जो आपको मालूम है, मान लो वही बड़ा है, मतलब बुरा ना, you treat it as your god, you treat it as your friend or girlfriend, whatever you want. But only thing जी is that give the most important to them कि you are the person. और जहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो भी अपने आप को बी ओपन एंड बी ऑनेस्ट कि हाँ सर मतलब आई एम, तो थोड़ा सा ना वो एक लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने आप में. तो जी हमको सर। हमारा जो लक्ष्य है वो है, अब वो यंग है, ओल्ड है, गोल्ड है, फोल्ड है, क्या है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए. और उसके कभी हम्म, कभी भूल भी जाओ ना तो सर आपको आंखों में बोल देने का, सर पता नहीं आप इतने आपके ही ऑरा में मैं खो गया, मैं सेक्शन ही भूल गया सर, मेरे को याद था. तो अगेन एवरीबॉडी हैज ये गॉट अ मार्केटिंग डिफरेंट स्किल्स। पर्सनैलिटी. हाँ, तो एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, लेकिन तो यू यूज यूर, बिकॉज यू नो व्हाट यू डोंट नो. तो बाकी को पता नहीं है, तो जो है उसी पे कहानी सुनाते रहो बस. और जहां लगे तो अपने आप को थोड़ा सा भी कूल, कभी बोल देना कहीं सर आपको देख के डर लग गया सर, आप इतनी सीरियसली थोड़ा सा स्माइल तो कर दो सर. तो बेचारा वो भी शांत हो जाएगा. सॉरी. तो कुछ ना कुछ ट्राई टू मेक देम स्माइल. कितना भी पर्सन पथरीला होगा तो वहां पे भी फूल निकल ही जाते हैं सर. जी बस सर, जी 15-20 बिल्कुल। मिनट की तो बात है. हम्म। हम्म. और तो डेली ऑफिस में सर डेली वाला ही होंगे कंट्रोलर या बाहर से आते हैं? जहाँ तो तक मेरे पैनल को चेंज नॉलेज है होती ना रहती सर, है। जयवीर सर, मेरे को इस बात है, इस पैनल पे यहाँ पे ना हम्म। पीपल, मुंबई ऑफिस में बाहर के लोग आएंगे और हम्म। बाहर वाले ऑफिस से एक दूसरे को लोग आपस में शिफ्ट करते रहते हैं. तो ये मत सोचना कि आप दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली वाला हो सके बॉम्बे वाला आपके पास आ जाए, कहीं से रैंडम होता है सर वो. ओके। तो अगेन हमारा मेन फोकस कहाँ से आए, कौन है, उसको क्या मतलब है, पूछेगा तो पेटेंट एक्ट से ही. सही है सर। जी। बिकॉज ओनली थिंग बी फोकस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन. आदमी का अपना क्वेश्चन, अपना थॉट ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो जस्ट बी फोकस, दैट्स ऑल. दैट्स ट्रू। जी। एंड दैट्स इट। आज के सेशन 11:30 बज चुके हैं. इफ वी आर हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन. हाँ जयवीर सारिका सर, मैडम जस्ट सारी रेज्ड. one. जस्ट हाँ हाँ, यस मैम. विनोद सर और ये सब पैनलिस्ट है उनको थैंक यू. बहुत अच्छा उन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, लेकिन फिर भी घबराहट हो रहा है सर, क्योंकि पेपर 2 में, सॉरी पेपर 1 में मेरे 62 ही है मार्क. और अब ये पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो पेपर का नहीं मैडम, ड्राफ्टिंग की तब देखिए मार्किंग थोड़ी. सारिका मैडम, पहले हाँ सर. पेपर 1 इजी हुआ करता था एट द टाइम हाँ. ऑफ 2022, 23, 24 ऑनवर्ड्स. पेपर 1 डिफिकल्ट है, पेपर 2 इजी है. मैं 18 से एग्जाम दे रहा हूँ मैडम, 18 के बाद हाँ. पढ़ा भी रहा हूँ एंड थ्रू आउट मुझे वो जर्नी पता है. तो 18, 22 तब तक आप देखेंगे ना, तो पेपर 1 वॉज इजी. मीन्स पेपर 1 में अनुज सर 68 कोर करके बोल रहे हैं कि मेरे कम आए हैं. सोचो. और अगर आज इस डे पे कोई अगर ऐसा बोले कि 68 मैंने स्कोर किए पेपर 1 में, तो व्हाट डू यू थिंक? वो सही में जेन्युइनली अच्छे मार्क्स है, क्योंकि पेपर 1 वाज टफ. नाउ डेज वही पेपर सोच रहा 2 था सर वाज मैं इजी. कि 68 को सर कह रहे हैं कम आए। हाँ. तो था सर, तब तब सभी के, आप वरा प्रसाद सर के मार्क्स देखेंगे सर, 78, 77. ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट 70 प्लस मार्क्स, 75 प्लस मार्क्स इन पेपर 1. जी तो वो होते थे. ओके. तो इट्स वेरी इजी. मींस पेपर 1 के मार्क्स तो आप ऐसे ही मान लो कि बस सेक्शंस आपके प्रॉपर हैं, रूल्स आपके प्रॉपर हैं, फॉर्म्स आपके प्रॉपर हैं, तो आपको मार्क्स आने ही वाले हैं. और वहां पर सिर्फ पेटेंट एक्ट ही था, डिजाइन एक्ट नहीं था एट दैट टाइम. हाँ. तो वो और भी एक अभी एडवांटेज था एडिशनल. अब ये दोनों है. हम्म. तो अब आपको पेपर 1 से नहीं डरना है. पेपर 1 62 इट्स गुड, बट पेपर 2 सामने आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है मैडम. अब पेपर 2 में 50 आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो. पेपर 2 का बैरियर आगे चला गया है, 60 एक्सपेक्ट करते हैं आप. आपकी कंप्लीट पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, दैट्स व्हाई. जी विनोद सर, इफ यू वांट टू ऐड मैं इस पे समथिंग. बोलूंगा सर, एक्चुअली जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 में 68 था, और सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपरेशन करने के बाद आई थिंक 64 था. तो प्रिपरेशन करने के बाद कम हो गया था पेपर 1 में, जबकि मैंने पहले पढ़ा पढ़ा नहीं था, जब पढ़ा तो नंबर कम आ गया. लेकिन पेपर 2 आई स्कोर मच हायर देन माई एक्सपेक्टेशन. मेरा तो 50 था, मेरा आई थिंक 64-65 तक गया था, इफ यू चेक. और उस पर, लेकिन द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू से कि जयवीर सर का बेनिफिट क्या होता था कि जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो सर आपको डाउट कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं. और जब आपको लगेगा सर मैं तो पास नहीं करने वाला सर, अरे विनोद आप, यू आर टैलेंटेड गाय, आपको कौन फेल
कर सकता है इंटरव्यू। तो वो फिर मैं बोला सर आप ये करते क्या हो, कभी आप ऊपर कर देते हो कभी नीचे कर देते हो? तो बोलते नहीं मैं ब्रेक लगाता हूँ बस, तुम ज्यादा उड़ते हो तो खींच देता हूँ, और जब ज्यादा नीचे जाता हूँ तो उठा लेता हूँ। तो जब भी सर वो बंदा है कि मतलब सीधे सीधे आईना दिखाते रहते हैं ऊपर नीचे क्रॉस चेक करके कि आपका रिदम उधर सिंक्रोनाइज रहेगा। So I'm sure all of you are synchronized. Wishing you all the very best. It's honor for me. I think any word of mine यदि आप लोग को कुछ वैल्यू एडिशन करेगा तो मुझे खुशी होगा। आई एम टच्ड विद द काइंड जेस्चर एंड क्वालिटी सीखने ऑफ लायक टाइम। बहुत है, आपसे सीखने लायक बहुत है। अभी मैं सुन रहा हूँ ना, बहुत। अरे मैं तो बोलता हूँ रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपसे कुछ सीखूं। कितना भाई कन्विंसिंग है उसमें, यू आर कन्विंसिंग मैन ऑफ द कन्विंसिंग पावर, परसुएशन कितना है। ग्रेट यार, ये तो सबको आना चाहिए। सब लोग आगे बढ़ेंगे आपको सुनेंगे तो। यू आर ग्रेट पर्सन, भाई ग्रेट ग्रेट गाय। मैं सच बोलो, दिल से बोल रहा हूँ। संजोग सर, थैंक यू। सीखना हमें आपसे भी पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ, सीखना हमें यस, आपसे भी पड़ेगा, आप भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। एक काम करो मैं सर तो संजय आज सर, चलते हैं पहाड़ी आज में के बैठ के बात करेंगे। आज के पूरे दिन में सत्या सर भी हमारे साथ थे। मुझे अभी ही हाईलाइट हुआ, सत्या सर इज आल्सो अ क्वालिफाइड पेटेंट एजेंट एंड पास्ड आउट प्रीवियसली। बट सर आज साथ थे। सर सॉरी कि मैंने आपको लेट में देखा, आपने बीच में ज्वाइन किया था, दैट्स व्हाई। बट डेफिनेटली सर, इफ यू आर फ्री, प्लीज प्लीज शेयर योर नॉलेज in any of the session, Monday to Friday from 9:45 to 10:45। आप जब भी आप कहेंगे सर, would like to listen you, would like to gain knowledge from you. Anyhow, if you are here, please share your views on the session, how the session is, and what do you think, whether it is beneficial for the students or not, candidates or not students. सर सेशन जितना भी मैंने अटेंड किया बहुत ही नॉलेजफुल रहा। और हमारे साथ के जो साथी हैं, अनुज अनुज सर हैं और विनोद जी हैं, और भी वरद प्रसाद सर को तो मैं मतलब ये इनके साथ में मैंने बैच भी आपका अटेंड किया था। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज मैं आज ही अपने सारी चीज़ों को शेयर करता। बट अभी अभी तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा सब लोगों से कि जो भी वाइब आप उस वाइबा वाले दिन कैरी करते हैं, वही आपके लिए मतलब पूरे दिन वही आपके साथ में रहेगी। सो जो भी कुछ अपना मूड जो है मॉर्निंग में एकदम बढ़िया रखे जाएं। जो भी वाइब आप कैरी करेंगे, पॉजिटिव वाइब, आपका दिन पॉजिटिव जाएगा। और सिंप्लिसिटी के साथ में जाएं, क्योंकि मैंने तो 2 बार वाइबा अटेंड किया। फर्स्ट टाइम मेरा वाइबा अच्छा हुआ था, बट आई डोंट नो मुझे कैसे मतलब उसमें कम मार्क्स मिले। बट सेकंड टाइम मेरा क्लियर हो गया था। सो डेफिनेटली आई विल शेयर माय ऑल द व्यूज इन अपकमिंग सेशन। और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। और खासकर से मतलब अनुज सर को और विनोद सर को और वर प्रसाद को जी को सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी मिलते हैं फिर। Thank you very much sir for being here। हेलो। and बस इसी के साथ, यस सर, आ रहे सर, ये रही हमारी गुड़िया। गुड़िया। जी सर, तो इसी के सर साथ हम इस सेशन को, जी जी सर। सर एग्जाम कब है? एग्जाम एग्जाम कब है? कौन सी? हाँ, वाइवा? वाइवा है। हाँ, अभी तो सर रिजल्ट डिक्लेयर होगा 14-15 मिड ऑफ फेब्रुवरी में हो जाएगी एग्जाम सर। तो मैं आपका ये सेशन सुनने के बाद है ना, मेरे में इंस्पिरेशन आ गया। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से वाइवा के लिए। इसलिए मतलब कि मेरे पास कितना टाइम है, तो मैं भी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से करता हूँ। मुझे लगा कि मैं गया करके, तो अभी बोला कि नहीं थोड़ा नहीं चांस मिल सर। गया, भगवान ने ऐसा बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया, तो होने के चांसेस है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा है, मीन्स मिड ऑफ द फेब्रुवरी, जी 20 सर। फेब्रुवरी के आसपास आज। जी थैंक यू, सर। थैंक और ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको कल 180th सेशन है ये, इस बैच का। तो 180 सेशन आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हैं, कल सुबह 10 बजे ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच डीपली फ्रॉम माय हार्ट to be here. And in any case, if I am helpful to you in any manner in future, I would be grateful to you. Means it would be my pleasure. ये थोड़ा सा ऋणानुबंधी ऋण है जो मुझे वापस आपको देना पड़ेगा। So in any manner, if I am able to helpful for you,
It's a pleasure for me. Thank you very Thank you much so once much, again, sir. and have a nice day, sir. Thank you. Good night. Thank you. Okay, Thank good you, Thank you, night. sir. Good Good night to night. all. sir. Thank you, sir.